जहाँ मेरे धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी हो, मेरे पड़ोसी के, मेरे दोस्त के, मेरे कलीग के, मेरे देशवासी के, मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग के धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी हो। Guru Nanak to Sant Kabir, from Mahatma Gandhi to modern reformers, this soil has continuously produced voices that remind us of truth, compassion, and service. The guidance for entire mankind. And it creates أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيम लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। हकीकत में अल्लाह के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। अस्सलाम वालेकुम। Moving ahead, I would like to call our esteemed guest speaker for today, Shahid Mevan Saab, to be on the dais. I would also call upon Secretary of Jamaat-e-Islami Hind, Samiullah Belwadi Saab, to be on the dais. Now we will have a short inaugural address. Will be presented by Janab Firoz Khan, who is member of Jamaat-e-Islami Hind, also president of CSPH, Center for Study of Philosophy and Humanities. Respected dignitaries on the dais, respected elders, distinguished guests, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon you all. It is indeed a great honor for me to stand before you at this talk on the subject of universal teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, organized by Jamaat-e-Islami Hind Panjim Unit. We meet here not just as representatives of different communities, but as fellow seekers of truth, justice, and peace, bound together by our common citizenship and shared humanity. India, our beloved land, has for centuries been a cradle of spirituality, moral reform, and coexistence. From the Upanishad era sages to the Buddha, from Guru Nanak to Sant Kabir, from Mahatma Gandhi to modern reformers, this soil has continuously produced voices that remind us of truth, compassion, and service. These voices, though diverse in languages and expressions, have always pointed towards the same eternal value: Satya, truth; Ahimsa, non-violence; Karuna, compassion; Nyaya, justice; and Seva, selfless service. It is in this light
that we gather today to reflect upon the life and message of Prophet Muhammad, peace be upon him, a personality born far away in Arabia more than 1,400 years ago, yet whose values and example resonate deeply with the Indian mind and heart. Often Prophet Muhammad, peace be upon him, is wrongly seen as the founder of Islam, as a figure belonging exclusively to the Muslims. But if we look closely, we discover in him a moral, spiritual, and reformative personality whose relevance extends beyond any single community. His message was not confined to a tribe, a nation, or religion. It was a call to humanity. He stood for truth, Satya, even when it was against his own people. He practiced non-violence, ahimsa, in the face of relentless persecution. He embodied compassion, karuna, forgiving even those who plotted his death. He established justice, nyaya, 1,400 years back, giving women, the poor, and the marginalized their due rights. He lived a life, a selfless voice. We call it seva, mending his own clothes, helping the needy, and standing by the oppressed. He even pointed humanity towards spiritual liberation, moksha, freedom from greed, ego, and moral decay. These values are not foreign to India. They are deeply woven in our civilization fabric. Dear friend, the aim of today's program is of conversation or dialogue, to learn from each other's traditions and values. Dialogue does not mean dilution of faith. It means deepening of understanding. The Quran itself declares, as Maulana has recited the word, O mankind, we created you from a single male and female and made you in a nation and tribes so that you may know each other, you may know one another. And this is not the is it not the very essence of India's heritage, that through diversity we may grow in knowledge, respect, and harmony? Today our society faces challenges that affect us all: poverty, corruption, unemployment, environmental damage, drug abuse, and communal tension. The Prophet Muhammad, peace be upon him, showed us that true spirituality is not to escape from these issues, but engagement with them. Religion must not divide us in solving human problems, but unite us in service and justice. Imagine the power of our tradition. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains, working together to build an India where no child sleeps hungry, no woman feel unsafe, no community feel excluded, no citizen feel voiceless. This is the India our prophets, sages, and reformers would all dream of. My dear friend, Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, the best of people are those who are more beneficial to others. This is a principle every Indian heart can embrace, regardless of faith. For ultimately, we are remembered not by what we consume or accumulate, but by what we contribute. Let this program be a step towards such contribution, a space of listening, learning, and living together. On behalf of Jamaat Islami Hind Panjim Unit, I warmly welcome you to this gathering. Your presence is itself a sign of hope, that in a world often divided, we can still gather as brothers and sisters in humanity. May this program strengthen the bond of understanding, compassion, and cooperation among us. Thank you, and peace be upon you all. Thank you, Mr. Firoz Khan. Now moving ahead with the main topic, I would like to introduce our guest speaker who has come all the way from Belgaum to Goa.
In short, I would like to introduce him. Mr. Shahid Memon Saab, he is MCom and has been a teacher as well as a lecturer in Commerce College in the past, but for a short period of time. He's a businessman and his business is into gents textiles and garments. If you ever visit Belgaum, do visit Shalimar Designer Studio at Khade Bazaar. He's member of Jamaat-e-Islami Hind Karnataka, also member of Advisory Council. He's also member of Academy of Comparative Philosophy and Religion, Gurudev Mandir, Belgaum. Also, Vinudhwani, FM Radio KLE Society, he is member of the Advisory Council. Founder member and patron of Sadbhavna Manch in Belgaum. Also nominated as member for District Minority Commission by Government of Karnataka. So with this short introduction, I would like him to present the presidential speech for today. Can I speak in Hindi and English both? हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आध्यात्मिक और रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, will it be okay? So kind of you. Thank you very much. सारी प्रशंसा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, जो मेरा, आपका, हम सब का पैदा करने वाला है और जो अकेला इस जगत का शासक, सम्राट और सृष्टिकर्ता है. अल्लाह की, ईश्वर की दया और करुणा हो उन महान आत्माओं पर जो हर युग में, हर ज़माने में इंसानों को सीधी राह दिखाने के लिए आते रहे. और सबसे अंतिम में अल्लाह की, ईश्वर की दया हो, करुणा हो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ईश्वर के आखिरी दूत बनकर सारी मानवता के मार्गदर्शक बनकर इस दुनिया में आए. आदरणीय भाइयों और बहनों और डायस पर बैठे हुए जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार और ऑर्गेनाइज़र्स, आज के इस प्रोग्राम में भाग लेते हुए it's really a joy. I'm very happy. और शायद इस तरह के इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम्स जहाँ मेरे धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी हो, मेरे पड़ोसी के, मेरे दोस्त के, मेरे कलीग के, मेरे देशवासी के, मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग के धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी हो, तो हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख सब आ जाते हैं ऐसे प्रोग्रामों में. बहुत खुशी की बात है. और वैसे भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ गोवा एंड गोवंस. वो कॉम्पोजिट कल्चर है, वो कम्युनल हारमनी है, वो सेक्युलर माइंडसेट है. इट्स रियली वेरी नाइस एंड अप्रिशिएट. ब्यूटीफुल ट्रेडिशन. और फिर मानो के करीब आए और मानो का संबंध अपने पैदा करने वाले से जुड़ जाए, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या काम हो सकता है. आज ये प्रोग्राम इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है, अ हम्बल स्टेप इन दैट डायरेक्शन. विषय पर आते हुए मुझसे कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन, उनका संघर्ष, वो मैं आपके सामने रखूं. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ईश्वर के आखिरी दूत बनकर, सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर आए. आपका जन्म, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, ऐसा नहीं. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म तो अभी 1500 साल पहले हुआ. आप कहेंगे अभी, इसलिए कि 1500 साल पहले का ज़माना वो ज़माना था जब बहुत से देश आपस में एक दूसरे के करीब आ चुके थे. दो बड़े एम्पायर्स, बिजाइंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, वो इस अपना राज्य इस धरती पर स्थापित कर चुके थे.
two large empires, the Roman Empire, the Byzantine Empire, the Persian Empire. Byzantine and Roman तो वही है, उसका ही हिस्सा है. Very powerful empires. Land और sea routes open हो चुके थे. ऐसे लोग भी थे जो धरती से के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से व्यापार के लिए आते जाते थे. Times had changed. Of course, आज जो ग्लोबल विलेज है वैसा ज़माना तो नहीं था, लेकिन 1500 साल पहले का ज़माना वो था जब बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़ चुके थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे. कम उनकी संख्या थी, नो डाउट, लेकिन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ नॉलेज वाज देयर. इसका एक और साइड है कि दूसरी तरफ दुनिया की हालत ये थी कि इंसान अपने पैदा करने वाले को भूल गया था. उसका रिश्ता अपने पालनहार से, अपने मालिक से टूट गया था और हर जगह जुल्म, अन्याय, अत्याचार, धोखा, धांधली, नारी जाति के साथ अत्याचार, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स. बहुत सारे खुद अरब में भी जो बड़े बड़े ट्राइबल लीडर्स थे, पावरफुल ट्राइब्स थे, उनका और वहाँ के साहूकार लोग जो थे, बड़े बिजनेसमैन थे और धर्माधिकारी थे, उनका गठजोड़ बना हुआ था. अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स का एक जाल था जिसमें लोग फंसे हुए थे. धर्म जो है रिचुअल्स तक और कुछ रीति रिवाज, कर्म कांड जिसको कहते हैं, वहाँ तक सीमित होकर रह गया था और ऊंच नीच, जात पात, रेशियल सुपीरियरिटी जैसे आज भी हम देखते हैं, उस ज़माने में भी वो चीज़ें थी. इंसान जैसे गुलाम बनाकर रख दिए गए थे. ये उस ज़माने के हालात थे. ऐसे अंधकार के वातावरण में ईश्वर के भेजे हुए एक प्रकाश की, एक रोशनी की ज़रूरत थी. एक ऐसा मार्गदर्शन जो सारे विश्व के मानव जाति के लिए हो, जो हर ज़माने के लिए हो, जो भटकती हुई इंसानियत को राह दिखाने वाला हो. एक ऐसा मार्गदर्शन जो इंसानों को इंसानों की गुलामी से मुक्त कराने वाला हो, उसकी आवश्यकता थी. ये मार्गदर्शन, ये संदेश पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से दुनिया में भेजा गया, पहुंचाया गया. और फिर ये कोई नया संदेश नहीं था. ये तो वही संदेश था जो हर युग में, हर ज़माने में ईश्वर के भेजे हुए महापुरुष और मैसेंजर्स दुनिया में लाते रहे. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये मार्गदर्शन पवित्र कुरान के रूप में पहुंचाया गया. ईश्वर वाणी के रूप में, रेवलेशन के ज़रिए उनकी 23 साल के प्रॉफिटहुड के जीवन में ये आया, थोड़ा थोड़ा करके. The revelation of the Holy Quran began when Prophet Muhammad was 40 years old. ये पवित्र कुरान पैगंबर के जीवन में ही लिख लिया गया, कंपाइल कर लिया गया, मेमोराइज कर लिया गया और आज तक ये सुरक्षित है, अनचेंज्ड है, अनकरप्टेड है, अनडाइल्यूटेड है. The Quran claims to be the guidance for entire mankind, and it claims that its teachings are relevant beyond space and time. इसी तरह पैगंबर के उपदेश, उनके कथन, उनकी शिक्षा, उनका जीवन, उनका संघर्ष बहुत विस्तार के साथ डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है. ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है.
खुदा के इस महान पैगंबर को हम हर रूप में देख सकते हैं। एक पिता, एक बेटा, एक पति, एक भाई, एक दोस्त, एक पड़ोसी, एक शासक, एक रूलर, एक जज, एक सोशल रिफॉर्मर, एक फिलोसोफर और गाइड, एक मार्गदर्शक, एक धर्मगुरु। जीवन के हर क्षेत्र में पैगंबर के जीवन में हमें नमूना मिलता है, एक मॉडल मिलता है। और फिर आज के संदर्भ में जो हमारी समस्याएं हैं, ये जात पात और ऊंच नीच के झगड़े, ये धोखा, ये बेईमानी, चीटिंग और फ्रॉड और करप्शन, ये अमीरी और गरीबी का बढ़ता हुआ फासला, ये नारी जाति के साथ अन्याय और अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्याएं, इन सब समस्याओं का समाधान भी हमें पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा में मिलता है। और फिर मानव के आत्मा की पुकार कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, किसने इस दुनिया में मुझे भेजा है, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ, कैसे जीवन गुजारना है, मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको लौट कर जाना है। इन प्रश्नों का उत्तर भी पैगंबर की शिक्षा में हमें मिलता है। जरूरत इस बात की है कि हम धर्म, जात और भाषा से ऊपर उठकर पैगंबर के जीवन का अभ्यास करें। और फिर ईश्वर के भेजे हुए मैसेंजर्स जब भी आते हैं ना, तो ऐसा संदेश और ऐसी शिक्षा लेकर आते हैं जिसमें मानव जाति की भलाई होती है और ये कॉमन हेरिटेज होता है मैनकाइंड का। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानव जाति पर बड़े उपकार और एहसान है। उनका सबसे बड़ा उपकार यह है कि उन्होंने इंसानों को अपने पैदा करने वाले और पालनहार का परिचय कराया। आज के संदर्भ में जब इंसानों ने खुदा को बांट लिया है, माई गॉड एंड योर गॉड, आवर गॉड एंड देयर गॉड, है ना, यही चर्चा है सोशल मीडिया पर भी। पैगंबर ने कहा कि मेरा, आपका, हम सब का पैदा करने वाला और पालनहार वो एक ही है, वो अलग कैसे हो सकता है। पवित्र कुरान में ईश्वर कहता है, ऐ लोगो, अपने रब की बंदगी करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग आए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। ऐसा करके ही तुम सफल हो सकते हो। वही तो है जिसने धरती को आराम की जगह बनाई, आकाश को छत बनाया, ऊपर से पानी बरसाया, तुम्हारे लिए अलग अलग अनाज और फल पैदा किए। जब तुम ये सत्य को जानते हो तो फिर कैसे तुम अपने पैदा करने वाले और पालनहार को छोड़कर किसी और को खुदा बना लेते हो। पवित्र कुरान में ईश्वर ने स्वयं अपना परिचय कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दया करने वाला है, करुणा करने वाला है। कहो कि अल्लाह एक है, उसका कोई भागीदार और पार्टनर नहीं। अल्लाहुस समद, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, सब उस पे डिपेंडेंट है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की संतान है न उसकी कोई संतान है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसका इक्वल,
और उस जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानव जाति पर यह उपकार भी है कि आपने सारी दुनिया को एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश दिया। आपने कहा जब ईश्वर एक है तो सारी मानवता भी एक है। जब हम सबका पैदा करने वाला एक है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? पवित्र कुरान में ईश्वर कहता है, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग और वंश बनाए ताकि तुम्हारा एक दूसरे से परिचय हो। निसंदेह ईश्वर के दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मानित है जिसके कर्म अच्छे हैं। आज एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हमको बताते हैं कि वी ऑल कम फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत पहले हुआ, उससे ये बात तो साबित हो चुकी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई काले को गोरे पर और कोई गोरे को काले पर उच्चता प्राप्त नहीं है। इसी तरह कोई अरब को नॉन अरब पर, कोई नॉन अरब को अरब पर कोई बढ़तरी और इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम सब आदम की संतान हो और ईश्वर ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आज के संदर्भ में जब मानवता टूटी हुई और बिखरी हुई है, पैगंबर की यह शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज 21st सेंचुरी में भी काले और गोरे, ऊंच और नीच, जात और पात, रेशियल सुपीरियरिटी है ना, इसके झगड़े और हर जगह वायलेंस और ब्लडशेड रेशियल सुपीरियरिटी के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर होता है। पैगंबर की ये शिक्षा बहुत रेलेवेंट है। पैगंबर मोहम्मद ने एक मानवता का कॉन्सेप्ट समाज में सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। आप सब जानते हैं, जब मुसलमान बंधु 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, है ना, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर एक रो में खड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इसी तरह हज की पवित्र यात्रा हर साल होती है। करीब करीब 35 लाख लोग यूरोप, अफ्रीका, एशिया के सैकड़ों देशों से चले आते हैं इस एक ईश्वरवाद के केंद्र पर, सेंटर ऑफ मोनोथिज्म। काले और गोरे, राजा और रंग, अमीर और गरीब, है ना, स्त्री और पुरुष, सब जमा हो जाते हैं। वहां जाने के बाद वस्त्र भी बदल देने पड़ते हैं। 2 सफेद कॉटन की चादरें हैं। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है। और काबे का जब परिक्रमा होता है, उस पवित्र घर का, काबा एक ब्लैक स्ट्रक्चर है, पत्थर का बनाया हुआ स्क्वायर, आपने देखा है, सिंबॉलिक कि ये खुदा का घर है, सेंटर ऑफ मोनोथिज्म, दैट्स ऑल। लेकिन उस पवित्र स्थान की परिक्रमा होती है, इसलिए करते हैं परिक्रमा कि प्रभु अब तू मेरे जीवन का केंद्र होगा, मेरा जीवन अब तेरे अतराफ घूमेगा, तुझे खुश करना, तुझे प्रसन्न करना, तेरी आज्ञा का पालन, तेरे इच्छा अनुसार जीवन बिताना, यही मेरे जीवन का आदर्श होगा। ये भावना होती है। लेकिन ये परिक्रमा करते वक्त हम देखते हैं, बहुत से लोग हज को गए हैं, कि एक काला आदमी जो अफ्रीका से आया हुआ है, गरीब आदमी होता है बेचारा, वो काबे से बिल्कुल सामने होता है, और एक यूरोप से आया हुआ गोरा आदमी या फिर कोई देश का बड़ा राष्ट्रपति या बादशाह, वो बहुत पीछे होता है। वहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल अरेंजमेंट किसी के लिए नहीं हुआ। ईश्वर के दरबार में सब सम्मान है, एक ईश्वर, एक मानवता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि आपने एक तरफ ये बताया कि खुदा का हक इंसानों पर क्या है, और दूसरी तरफ ये बताया कि इंसानों का हक इंसानों पर क्या है।
खुदा का हक इंसानों पर यह है कि वो इस इंसान इस सत्य को स्वीकार कर ले कि इस जगत का शासक, सम्राट, सृष्टिकर्ता, हमारा आपका पैदा करने वाला वो एक ही है। उसी की आराधना हो, उसी की उपासना हो, उसी की आज्ञा का पालन हो। जो कुछ मांगना है उसी से मांगो और उसको छोड़कर किसी और के आगे अपने सर को न झुकाए। यह खुदा का हक इंसानों पर है। और इंसानों का हक इंसानों पर यह है कि सारे इंसान एक ही माता पिता के संतान है और इस नाते से एक दूसरे के साथ सत्य और न्याय, दया और करुणा, प्रेम और भाईचारगी का स्वभाव होना चाहिए। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड टुवर्ड्स गॉड्स क्रिएशन, इस पर पैगंबर ने बहुत ज्यादा जोर दिया। आपने कहा कि देखो कयामत के दिन, जिस दिन न्याय होगा, एक व्यक्ति आएगा, बहुत नमाजें पढ़ा होगा, रमजान के रोजे रखा होगा, हज की पवित्र यात्रा को भी जाकर आया होगा, खुश खुश आएगा कि आज तो मुझे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उस दिन न्याय के दिन ईश्वर के दरबार में बहुत से लोग खड़े होंगे, कंप्लेंट्स लेकर, शिकायत लेकर, फरियाद लेकर कि प्रभु, ए अल्लाह, इस आदमी ने हमको झूठ बोला था, इसने चोरी की थी, इसने हमारा हक मारा था, इसने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया था, इसने हमको धोखा दिया था, इसने पीठ पीछे हमको बदनाम किया था, इसने 4 लोगों के सामने हमारी इंसल्ट की थी। किसी को इंसल्ट करना बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर ने इंसान को डिग्निटी के साथ पैदा किया। वह कर्रम न बनी आदम, हमने आदम की संतान को डिग्निटी दी है। एक स्वीपर और झाड़ू मारने वाला होता है ना, उसको भी डिग्निटी होती है। तो इस तरह से बहुत से कंप्लेंट्स होंगे। उस दिन 500 रुपीस के नोट्स या डॉलर्स नहीं होंगे देने के लिए, तो न्याय होगा ना। ईश्वर दया करने वाला है और न्याय दया का अंग है। जस्टिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ मर्सी। न्याय नहीं तो दया कैसी? तो ईश्वर कहेगा कि इसकी पुण्य की गठरी खोल दो जो ये लेकर आया है और उन सब कंप्लेनेंट्स में बांट दो, इसकी पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी। कंप्लेंट्स फिर भी बाकी रहेंगे। ईश्वर फरिश्तों को बुलाएगा, कहेगा कि उन लोगों के पाप ले लो और इसकी गठरी में डाल दो और हिसाब को चुकता कर दो। न्याय होना है ना। इसकी पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी, पापों से भर जाएगी। ईश्वर कहेगा कि ले जाओ इसको नरक में, इसका ठिकाना तो नरक है। नमाज पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, हज की पवित्र यात्रा के बावजूद उसका ठिकाना नरक होगा। इस एग्जाम्पल से पैगंबर मोहम्मद ने यह बताया कि देखो धर्म का जो सारांश है वो यही है कि इंसान इस दुनिया में भला इंसान बनकर जिए, ऐसा जिए कि उसका जीवन वरदान बने, ब्लेसिंग बने सारी मानवता के लिए, सारी सृष्टि के लिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानव जाति पर अनगिनत उपकार और एहसान है। आपने कहा जब ईश्वर एक है और सारी मानवता एक है, तो ईश्वर का भेजा हुआ संदेश भी सारी मानव जाति के लिए वो एक ही है। अलग अलग संदेश कैसे हो सकता है? और ये कहा कि मैं कोई नया संदेश लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो वही संदेश लेकर आया हूँ जो हर युग में ईश्वर के महापुरुष और मैसेंजर्स लेकर आते रहे। और वो संदेश क्या? हर मैसेंजर ने यही कहा, आओ हम और तुम उसके आगे झुक जाएं जिसके आगे ये पूरा जगत झुका हुआ है। उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके आगे समर्पित हो जाएं। पवित्र कुरान में कहा गया
क्या तुम नहीं देखते कि आकाश और धरती में जो कुछ है वो चाहे न चाहे ईश्वर के आगे समर्पित है। वास्तविकता में हमारे धरती का रोटेशन और रेवोल्यूशन हो या फिर इस यूनिवर्स में स्टार्स और प्लैनेट्स और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो, इनका ऑर्बिट्स में घूमना हो, या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी हो, हमारा एक एक ऑर्गन, एक एक मसल, एक एक टिश्यू, एक एक सेल वही काम करता है जिसका हुक्म उसके प्रभु ने उनको दिया है। ये सब अपने प्रभु के आगे समर्पित है। मानव को समझाया गया कि देखो, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है, इस सत्य को स्वीकार कर लो, अपने प्रभु के आगे समर्पित हो जाओ। यही सफलता का रहस्य है इस दुनिया में भी और मौत के बाद के जीवन में भी। आज के संदर्भ में पैगंबर की ये शिक्षा बहुत बहुत रेलेवेंट है। आज धर्म कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज तक सीमित होकर रह गया है। We have confined religion to certain rites and rituals, empty religiosity. मैं कह सकता हूं, ईश्वर को मानना है लेकिन खाली खोली मानना क्या मतलब है? मैं मेरी मर्जी के साथ जीना चाहूंगा, ईश्वर की मर्जी के मुताबिक जीवन गुजारना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताना, उसके मार्गदर्शन पर चलना, दूर दूर तक इस तरह की सोच और विचार आज इंसानों में नहीं है। We have confined religions to restricted to certain rites and rituals, that's all. खाली खोली ईश्वर को मानना, उससे कोई मतलब नहीं। पवित्र कुरान में कहा गया, ईश्वर को मानने का मतलब यह है कि उसके आगे समर्पित हो जाना है, सरेंडर होना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और हमने धर्म को रिचुअल्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, रिचुअल्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसका जो सारांश है, उसका जो क्रक्स और एसेंस है, वो अगर हमारे जीवन में ना आए और एम्प्टी रिचुअल्स बन जाए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। आज हम देखते हैं, ये धर्म वो धर्म की बात नहीं, इन जनरल यही हाल हो चुका है। और जिसका परिणाम ये हुआ है कि मानव जीवन संकट और परेशानियों से भर गया है। जीवन का हर क्षेत्र में बिगाड़ है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है। इंडिविजुअल लाइफ हो, कलेक्टिव लाइफ हो, नेशनल लाइफ हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं, इंसान ईश्वर की मर्जी के मुताबिक जीना नहीं चाहता, उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसकी आज्ञा के मुताबिक चलना नहीं चाहता। और परिणाम उसका ये हुआ कि आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आज खड़ा हुआ है, कैन मैन सर्वाइव ऑन प्लैनेट अर्थ? क्या इंसान इस धरती पे जी सकेगा? इन हालात में और ये परिस्थिति में पैगंबर की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची बात तो ये है कि मानव जब अपने प्रभु के आगे समर्पित हो जाता है ना, सरेंडर हो जाता है, तो ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा कॉस्मोस उसके संग संग चलने लगता है। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। लाइफ फ्लावर और ब्लॉसम होती है, जिंदगी में बाहर आती है। In fact, the word Islam is derived from two words, सिल्म और सलम। सिल्म का मतलब है सरेंडर होना, सबमिट होना। सलम का मतलब है पीस, अस्सलामु अलैकुम, may peace be upon you। सिल्म और सलम। Only through submission and surrender to God Almighty we can get peace and prosperity in this life and in the life to come। यही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, जो आज के संदर्भ में बहुत रेलेवेंट है। पैगंबर का मानव जाति पर एक बहुत बड़ा उपकार ये भी है कि आपने दुनिया का जीवन क्या है
इसकी परिभाषा हमको समझाई। पवित्र कुरान में ईश्वर कह रहा है, बहुत ही धन्य है वो जिसके हाथ में सारे जगत की बादशाही है और जो हर चीज पर नियंत्रण रखता है, जिसने मृत्यु को और जीवन को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा लें और देखें कि कौन अच्छे कर्म करने वाला है। ईश्वर तो अत्यंत दया करने वाला और क्षमा करने वाला है। दिस लाइफ, short and temporary life, is a test and trial for us. It is not the be all or end all. Eat, drink and be merry. You live only once. ये जो सोच है, ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गई। पैगंबर ने समझाया कि देखो, ये दुनिया का जीवन बहुत छोटा है। मौत जीवन का अंत नहीं है। मौत के बाद एक नया जीवन शुरू होता है जो हमेशा हमेशा का, सदा सदा का जीवन है। और सफल वो है जो उस जीवन में सफल हो जाए। आपने कहा ईश्वर दया करने वाला है और न्याय का दिन तो आके रहेगा। जस्टिस और न्याय दया का अंग है। जो अभी मैंने आपसे कहा, जस्टिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ मर्सी। और न्याय का दिन आके रहेगा और कर्मों के आधार पर इंसानों को बदला दिया जाएगा, सजा और पुरस्कार मिलके रहेगा। ये दुनिया टेस्ट एंड ट्रायल है हमारे लिए, ये बी ऑल और एंड ऑल नहीं है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि देखो, कयामत के दिन जिस दिन न्याय होगा, इंसान प्रभु के सामने खड़ा होगा, अपनी जगह से हट नहीं सकेगा जब तक कि वो 3 प्रश्नों का उत्तर न दे दे। पहला प्रश्न ये कि ईश्वर ने उसे जीवन दिया था, उसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म। दूसरा प्रश्न ये कि ईश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया था, उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। और तीसरा प्रश्न ये कि तीसरा प्रश्न ये कि उसने धन कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। धन कमाना भी पवित्र और स्वच्छ तरीके से हो और उसका खर्च भी इस तरह से हो कि गरीबों का हक दिया जाए। आज के संदर्भ में पैगंबर की ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि हर जगह धोखा, बेईमानी, चोरी, झूठ, अन्याय, अत्याचार, लूट, मार, करप्शन, भ्रष्टाचार, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे रोका जाए। अकाउंटेबिलिटी बिफोर गॉड, ये एक ऐसी सच्चाई है कि इंसान अगर इसको समझ जाए तो फिर वो भला मानस बनकर दुनिया में रहता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर दुनिया में रहता है। सच्ची बात तो ये है कि दुनिया का कोई काम भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बगैर अकाउंटेबिलिटी के सफलता असंभव है। दुनिया में भी अकाउंटेबिलिटी इज ए मस्ट। और एक बात यह भी है जो हम सब जानते हैं कि दुनिया में तो मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, आदमी बड़े से बड़े क्राइम करता है, गफले घोटाले करता है, एस्केप हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? एस्केप हो जाता है। लेकिन इंसान के मन और विचार में ये आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो सब ईश्वर के पास रिकॉर्डेड है। आज एक छोटे से माइक्रोचिप में हम करोड़ों इंसानों का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ईश्वर हमारे कर्मों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई पूछ नहीं होगी। मुझे लौटना है मेरे प्रभु के पास, मेरे कर्मों का हिसाब देना है। जब मैं लौट कर जाऊं, मेरा प्रभु मुझसे खुश हो जाए, मेरे मौत के बाद का जो हमेशा हमेशा का जीवन है वो सफल हो जाए। ये पैगंबर की शिक्षा है। और ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना बिफोर द मास्टर एंड क्रिएटर, ये हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान है। ये बहुत रैशनल और लॉजिकल है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक बार अपनी बेटी फातिमा से कहा कि फातिमा, ये मत समझना कि तेरा पिता खुदा का पैगंबर है और क़यामत के दिन तुझे बचा लेगा। फातिमा, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म कर। तेरे अच्छे कर्म और ईश्वर की दया और करुणा, गुड डीड्स एंड द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ये तेरे काम आएगी। उसका ग्रेस भी ज़रूरी है, सिर्फ कर्मों के बिना पर कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। शायद मेरी बातों को समेटना है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो पैगंबर की शिक्षा में हमको मिलते हैं, हर धर्म में मॉरल वैल्यूज़ हैं, कॉमन है। कितनी सुंदर बात है, धर्म का मतलब ही वही। लेकिन पवित्र कुरान में और पैगंबर की शिक्षा में जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, वो बहुत स्पेसिफिकली उसको डिफाइन किया गया है, कैटेगोरिकली उसको एक्सप्लेन किया गया है। दया, करुणा, लोगों की मदद करना, ये पैगंबर के जीवन का अटूट हिस्सा था। आपने कहा धरती वालों पे दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। आपने कहा वो व्यक्ति मुसलमान नहीं है जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर के खा रहा हो। पड़ोसी कोई भी धर्म का हो सकता है। आपने कहा तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के काम आए। खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क, खिदमत सेवा, खल्क क्रिएशन, मानव सेवा, बल्कि पूरे क्रिएशन ही आ गया इसमें। सबकी खिदमत करना वो सबसे बड़ी इबादत है। एक कविता की पंक्ति है, यही है इबादत, यही दीन व ईमा, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। यही भक्ति, यही पूजा, यही श्रद्धा, कि दुनिया में इंसान इंसान के काम आए। बड़ी प्यारी बात है कि रमज़ान के 30 दिन के रोज़े होते हैं ना, वो एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, टू शेयर एंड टू केयर। 14-15 घंटे कंटिन्यूसली 30 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है ना। रोज़ा तो अमीर और गरीब दोनों के लिए है। एक धनवान आदमी भूख क्या है उसको उसका आइडिया नहीं होती, लेकिन रमज़ान में पैंग्स ऑफ हंगर, he gets sensitized to the needs of the poor and the downtrodden। इसीलिए कहा गया कि भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, बीमार है उसको दवा पहुंचाओ, लोगों के दुख दर्द में काम आओ। टू शेयर एंड टू केयर, ये रमज़ान में ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर रमज़ान में लोग साल में एक बार ज़कात निकालते हैं। जो धनवान लोग रहते हैं, जिनके पास बची हुई दौलत है, 2.5% ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड वेल्थ। मेरे पास मेरे पत्नी की ज्वेलरी है, बैंक का कैश बैलेंस है, दुकान में पेड अप स्टॉक है, मुझे कैलकुलेट करना है, उसका 2.5% गरीबों को कंपलसरी देना है। एग्रीकल्चर इनकम है, इरिगेशन से है तो 5%, बारिश के पानी से नेचुरल है तो 10%, ये देना है। ये और बात है कि एक ज़माना था पैगंबर के बाद भी, पैगंबर के जीवन में भी और उनके बाद भी ये चलता रहा सिस्टम। उसके बाद टूट कर बिखर गया कि ये कलेक्टिव सिस्टम था। पूरे लोगों की ज़कात एक जगह जमा होती, फिर सर्वे किया जाता और वो ज़कात इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती कि आज जो ज़कात लेने वाला है कल वो ज़कात देने वाला बन जाता। आज जो समाज और सोसाइटी के लिए लायबिलिटी है कल वो अर्निंग मेंबर और एसेट बन जाता। इससे अमीरी और गरीबी का जो डिस्टेंस है ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वो रिड्यूस होती है। आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे देश में वो 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है, और बॉटम 50% जो गरीब हैं बेचारे, आधे के आधे लोग, सिर्फ 6.4% वेल्थ उनके पास है। यानी माइंड बॉगलिंग है। 20 करोड़ इंसान ऐसे हैं अपने देश में जो 2 वक्त की रोटी पेट भर के नहीं खा सकते। सबसे बड़ा समस्या आज भूख का है, हंगर, पूरे दुनिया में। स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आ रही है। एक बार वो यूथ को एड्रेस कर रहे थे स्वामी जी। उन्होंने कहा कि देखो तुम बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हो, बहुत धन कमा रहे हो, खुशी की बात है, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर अपने गरीब देशवासियों के दुख दर्द में काम नहीं आते तो मैं कहूँगा कि तुम ट्रेटर्स हो।
सिर्फ नारे लगाना, स्लोगन्स और गानों तक देश प्रेम सीमित नहीं है। देश प्रेम का असल मतलब तो यह है कि देशवासियों से आपको मोहब्बत हो, धर्म, जात और भाषा से ऊपर उठ के उनके दुख दर्द में काम आना। आज के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा बहुत रेलेवेंट है। एक और बात है कि सारी दुनिया में आज नफरत है, घृणा है, शत्रुता है, उसका वातावरण है, हेट्रेड, एनिमिटी, रिवेंज। हमारे देश का प्रेजेंट सिनेरियो भी ऐसा ही कुछ है, हेट्रेड, एनिमिटी, रिवेंज। ये हमारे देश में एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। सारी दुनिया में भी ये चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद की क्षमा और फॉरगिवनेस का जो शिक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र कुरान में ईश्वर कहता है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, बदले की, रिवेंज की भावना नहीं। पवित्र कुरान में बहुत कैटेगोरिकल कहा गया, तुमको अगर कोई तकलीफ दे तो तुमको हक है कि उसी तरह की तकलीफ उसको भी दो, यू हैव अ राइट। लेकिन तुम अगर क्षमा करते हो तो फिर ईश्वर के नजदीक तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसे लोगों को ईश्वर प्रेम करता है, निश्चित रूप से इसका पुरस्कार तुमको मिलेगा। एक और जगह कहा गया कि देखो, बुराई और अच्छाई दोनों एक नहीं हो सकती। तुम बुराई का जवाब अच्छाई से दो, और ऐसी अच्छाई कि तुम देखोगे कि तुम्हारा जो दुश्मन है ना वो भी दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकते हैं जो सहनशीलता रखते हैं, जो पेशेंस और टॉलरेंस रखते हैं, और ऐसा जो करते हैं वो बहुत भाग्यवान है। ईश्वर उनसे प्रेम करता है। पैगंबर मोहम्मद कहा करते थे कि देखो, लोगों को क्षमा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि क्या तुम नहीं चाहते कि ईश्वर भी तुमको क्षमा करे? इंसान कितने पाप करता है, ईश्वर तो दया करने वाला, क्षमा करने वाला। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। हम अगर लोगों को क्षमा करेंगे तो ईश्वर भी हमको क्षमा करेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। पैगंबर ने पूरे जीवन में इसका बहुत से एग्जाम्पल्स दिए। उनका जीवन इसका मॉडल था। अपने जानी दुश्मनों को भी आपने क्षमा कर दिया। फिर यूनिवर्सल टीचिंग्स जो है ना, उसके बारे में कहना है तो बहुत सी बातें हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि दुनिया में नारी जाति के साथ हमेशा से अन्याय और अत्याचार हुआ है। तो नारी जाति के संबंध पैगंबर की शिक्षा क्या है? आज भी इतिहास में तो हुआ है, हर युग, हर ज़माने में, हर देश में हुआ है। आज भी 21st सेंचुरी में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज़, है ना, ये मी टू मूवमेंट, और अभी अभी जो आया, क्या आया वो, एपिस्टन फाइल्स, है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं कि किस तरह से नारी जाति को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। पूरे दुनिया में ये मी टू मूवमेंट चला, और एपिस्टन फाइल्स जब खुले और बंद हो गए, समझ में नहीं आया कैसे कैसे लोग औरत को एक्सप्लॉइट करें। पैगंबर जब इस दुनिया में आए तो अरबिया में, सऊदी अरब में, लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता, दे टू बी बरीड अलाइव। औरतों को नंगा कर कर काबे का परिक्रमा कराया जाता। पूजा पाठ अगर उनको करना है तो कंप्लीटली नेकेड होकर करना है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था और कुछ नहीं। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद ने औरतों को गरिमा दी, प्रतिष्ठा दी, डिग्निटी और ऑनर दिया, समाज और सोसाइटी में एक ऊंचा स्थान दिया। ये 6th सेंचुरी की बात है, जब औरत की पोजीशन क्या थी। आपने कहा कि देखो, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में ईश्वर की दया और करुणा होती है। जिसकी 2 बेटियां हैं
एक बेटी भी है और अगर वो पालन पोषण करता है, लड़के और लड़की में डिफरेंशिएट नहीं करता है, अच्छा एजुकेशन देता है, अच्छी जगह उसका व्यवहार करता है, तो क़यामत में वो और मैं दोनों संग संग होंगे। ये स्टेटस दिया उन्होंने लड़की का। आपने कहा माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। बाप के बारे में भी आपने कहा पिता स्वर्ग का दरवाजा है। आपने विधवा को दोबारा शादी करने का हक दिया। 6th सेंचुरी में एक विधवा, एक विडो दोबारा शादी कर सकती है। ये तस्वुर भी, कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने कहा कि लड़की का विवाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपना कंसेंट न दे। लड़की अगर विवाह के लिए, रिश्ते के लिए यस कहती है तो ही विवाह होगा। लड़की कोई गाय बैल भैंस नहीं है कि ये खूंटे से निकाल और वो खूंटे पर बांध दो, ऐसा नहीं है। लड़की का विवाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब लड़का लड़की को मेहर न दे। लड़की को ये हक है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से लड़के से मेहर मांगे। मेहर इज फाइनेंशियल अमाउंट टू बी गिवन टू दी गर्ल। वो उसका हक होता है। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो मेहर की रकम उसकी हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई तस्वुर उस वक्त था भी नहीं। इसी तरह लड़की को मैरिज को नलीफाई करने का भी हक दिया। अगर शौहर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कई सालों से लापता है, इम्पोर्टेंट है, तो लड़की लड़के से अलग हो सकती है। शौहर और पत्नी अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये बंधन जुड़ गया तो फिर नहीं टूट सकता। लड़की को सब कुछ बर्दाश्त करना है ना, उसको हक है। आज सारे रिलीजन्स में जो पर्सनल लॉज बने हैं उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि लड़की को और लड़के को दोनों को अलग होने का हक दिया गया। इसी तरह 6th सेंचुरी BC में, AD में 1400-1500 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लड़की को राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया कि माँ के जायदाद में, पिताजी पति के जायदाद में, है ना, संपत्ति में, भाई की संपत्ति में, हर अपने रिश्तेदार के संपत्ति में लड़की को हक दिया गया। ये यूरोपियन वर्ल्ड में तो लड़की को इनहेरिटेंस का हक तो शायद मेरा ख्याल है 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के एंड में मिला। और हमारे देश में शायद ये 1965 वगैरह में राइट ऑफ इनहेरिटेंस एक्सेप्ट किया गया। तो ये पैगंबर की शिक्षा है औरतों के ताल्लुक से। इसी तरह बस ये बहुत सारी बातें हैं। मैं एंड करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की समस्या बड़ी गंभीर है। पूरी दुनिया उससे परेशान है। हमारा देश भी प्रभावित है। उत्तराखंड, हिमाचल, है ना, जम्मू कश्मीर में हमने देखा क्या हाल हुआ, कैसी दुर्घटनाएं, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंड और क्लाउड बर्स्ट, और फिर पंजाब और हरियाणा, नॉर्थ इंडिया पूरा नदियों के बाढ़ में डूब गया। ये सब क्लाइमेट चेंज का परिणाम है। पवित्र कुरान में इसकी बहुत क्लैरिटी के साथ बताई गई कि देखो, ईश्वर ने ये जो प्रकृति बनाया है ना, ये मानव के लिए बनाया है। ये उसकी लीला और रचना है। ये प्रकृति का कण कण उसके नूर से प्रकाशित है। वो उसके आगे समर्पित है। पवित्र कुरान में कहा गया, ईश्वर कह रहा है कि हमने तुम्हें, मानव से कह रहा है, हमने तुम्हें अपना प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी बनाकर दुनिया में भेजा है। एक जगह कहा गया कि देखो, हमने इस पृथ्वी को बैलेंस और संतुलन के साथ स्थापित किया, इसको भंग न करना। एक जगह कहा गया, हमने धरती का विस्तार किया
और उसमें पहाड़ों को कीलों की तरह गाड़ दिया, और हर चीज़ जो बनाई ठीक ठीक मात्रा से, प्रोपोर्शन से बनाई। एक और जगह कहा गया आकाश और धरती को और जो कुछ उसके बीच में है हमने बेकार नहीं बनाया, हर एक का उसका लक्ष्य दिया, उसका उद्देश्य दिया। आज हमने मिलियंस ऑफ स्पेसीज को डिस्ट्रॉय किया, बेकार नहीं बनाया। पैगंबर मोहम्मद ने समझाया कि देखो, ईश्वर ने इस धरती पर, अपनी पृथ्वी पर मानव को सबसे प्रथम स्थान दिया, क्राउन ऑफ द क्रिएशन। उसको बुद्धि और ज्ञान दिया, सोचने समझने की शक्ति और क्षमता दी, अच्छे बुरे की पहचान बताई, और हर युग में अपने महापुरुष पैसेंजर्स के माध्यम से मार्गदर्शन भेजा, और फिर इस पूरी पृथ्वी को मानव के हाथों में दे दिया कि तुम उसका रक्षक हो, रखवाले हो, केयर टेकर्स हो, ट्रस्टीज हो। इसको संभालना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी परीक्षा है। और देखो, तुम इस प्रकृति का विनाश करोगे ना, तो अपने हाथों से अपना नुकसान कर लोगे। अपने आने वाली संतान के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ जाओगे जहां जीना असंभव हो। और यह भी चेतावनी दी गई कि देखो, लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार से दूर रहना। पवित्र कुरान में संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दी गई। ईश्वर कहता है कि आदम की संतान, खाओ पियो, लेकिन फजूल खर्ची और वेस्टफुलनेस न करो। मॉडरेशन और बीच का रास्ता इख्तियार करो। ईश्वर एक्स्ट्रावेगेंस को और वेस्टफुलनेस को पसंद नहीं करता। बहुत प्यारी बातें हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा पर्यावरण की और इस प्रकृति की सुरक्षा के संबंधित कि देखो, ये पूरी सृष्टि ईश्वर का परिवार है। जो इससे प्रेम करेगा, ईश्वर उससे प्रेम करेगा। पेड़ लगाना, आपने कहा, इतना बड़ा पुण्य का काम है कि इंसान के मर जाने के बाद भी उसकी आत्मा को इसका पुण्य मिलता रहेगा। आपने कहा, नदी के किनारे भी बैठे हो तो उतना ही पानी का उपयोग करो जितना की आवश्यकता है। आपने कहा, तुम में से कोई पेड़ लगा रहा हो और ये आवाज सुनाई दे कि अब दुनिया का अंत होगा, पेड़ लगाने का काम पूरा कर देना, उसके परिणाम की चिंता न करना। और फिर आपने ये भी कहा पवित्र कुरान के माध्यम से कि देखो, एक दिन आएगा जब हम सबको लौटकर अपने प्रभु के पास जाना होगा। पवित्र कुरान में ईश्वर कह रहा है, आज हम देख रहे हैं ना, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रूलर्स हैं, उनका गठजोड़ है, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस प्रकृति का विनाश करते हैं और जिसका परिणाम करोड़ों इंसानों को होता है। लंबा सब्जेक्ट है ये। कुरान में कहा गया कि मानव ये समझता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा और कोई पूछ नहीं होगी। क्लाइमेट चेंज का सलूशन, ये एक पूरा विषय है, पूरे एक दिन का वर्कशॉप चलाया जा सकता है, हाफ डे का तो चलाया जा सकता है। एंड करते हुए मैं 5 मिनट्स में कंक्लूड कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया हूँ। पैगंबर मोहम्मद का मानव जाति पर यह भी उपकार है कि उन्होंने आत्मशुद्धि और आत्म पवित्रता, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, इस पर बहुत जोर दिया। आज इंसान अपने शरीर की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, लेकिन अपनी आत्मा को प्यासा छोड़ता है ना? आत्मा को प्यासा छोड़ा है हमने। We are so busy in catering to the comforts and pleasures of the body that we have left our soul impoverished. पवित्र कुरान कहता है, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। सफल हुआ वो जिसने अपनी आत्मा पर मेहनत किया, उसको फ्लावर और ब्लॉसम होने का मौका दिया, और नाकाम हुआ हो, बर्बाद हुआ वो जिसने अपनी आत्मा को। रमज़ान में ये ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल आज रमज़ान भी एक रिचुअल बन गया है, फूड फेस्टिवल बन गया है। बहुत कम लोग हैं जो समझकर करते हैं, जो समझकर करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। यही ट्रेनिंग दी गई रमज़ान में। यानी ये एहसास होता है ना, 14-14, 15-15 घंटे इंसान भूखा रहता है ना,
तो खाना पीना सब कुछ नहीं है. दिस इज नॉट द बी ऑल एंड ऑल. आत्मा की भूख है, आत्मा की प्यास है. कैसे मेरे संबंध को मेरे प्रभु से मैं जोड़ूं, मेरी आत्मा की प्यास को पूरा करूं. और फिर मानव सेवा करना है ना, टू शेयर एंड टू केयर. रमजान की वही शिक्षा है. ईश्वर बताना चाहता है कि देखो, शरीर खाकर खुश होता है, आत्मा खिलाकर खुश होती है. शरीर लेकर खुश होता है, आत्मा देकर खुश होती है. आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना. मेरे साथ कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, मैं बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं क्षमा कर दूं, आत्मा संतुष्ट होती है. पवित्र कुरान का एक डायलॉग है, बहुत प्यारा डायलॉग है. एक श्लोक है, उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, कि बहुत से लोगों को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा. मर्द भी होंगी, औरतें भी होंगी. ईश्वर उनसे संबोधित होगा कि मेरे प्यारे बंदो, क्या संतुष्ट आत्मा की बात है ना, उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं. आत्मा संतुष्ट हो, कंटेंटेड सोल. ऐ मेरे प्यारे बंदो, क्या तुमको सब कुछ मिल गया जिसका मैंने तुमसे वादा किया था? बंदे कहेंगे, प्रभु तेरा उपकार है, तेरा एहसान है. हमने तो सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी. ऐसे स्वर्ग में तूने हमको प्रवेश दिया है. इसलिए स्वर्ग वो है जहां मौत नहीं, हमेशा का जीवन है. स्वर्ग वो है जहां बीमारी नहीं, हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती है. स्वर्ग वो जगह है जहां बुढ़ापा नहीं, हमेशा जवान रहेगा. स्वर्ग वो जगह है जहां दुख की कोई परछाई नहीं, सुख ही सुख होगा. और स्वर्ग वो जगह है जहां इंसान के सारी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा. आज बिल गेट्स हो या अंबानी हो, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती. बंदे कहेंगे, प्रभु तेरा उपकार है. खुदा कहेगा कि नहीं, उपकार कहेगा, ये तो तुम्हारी पसीने की कमाई है. तुमने मेरी खातिर दुनिया में जिया था. कदम कदम पर, पग पग पर, जिंदगी के हर मोड़ पर ये देखा था कि मैं किससे खुश होता हूं, किससे नाराज होता हूं. मेरी आज्ञा का पालन किया था. तुमने लाखों की दौलत को ठुकरा दिया कि नहीं, ये भ्रष्टाचार की. आज तो बदले का दिन है ना, और मुझसे अच्छा बदला और कौन दे सकता है. द डे ऑफ रिकम्पेंस कहा गया, कयामत. फिर प्रभु कहेगा, एंड करना हूं मैं बात को, कि एक और चीज है जो मैं आपको देना चाहता हूं. तो बंदे कहेंगे, हे प्रभु और क्या, व्हाट एल्स? इतना सब कुछ तो तूने दे दिया हमको. तो प्रभु उस दिन अपने आप को खोल देगा. वो बेनकाब हो जाएगा, वो अपना दर्शन देगा. आज हम अपने पैदा करने वाले को नहीं देख सकते. हमने बहुत से छोटे बड़े खुदा बना लिए हैं, लेकिन अपनी कल्पना से बनाए. हमारा प्रभु तो वो है जो इस पूरे जगत को बनाया. उस दिन वो अपना दर्शन देगा और फिर वो कहेगा कि आज मैं तुमसे खुश हो गया. अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं. आज तुम्हारी परीक्षा का अंत है. आज मैं तुमसे खुश, तुम मुझसे खुश. पवित्र कुरान का एक श्लोक है जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया. या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती. ऐ संतुष्ट आत्मा, लौट अपने प्रभु की तरफ, इस स्थिति में कि तू उससे संतुष्ट और वो तुझसे संतुष्ट. प्रवेश कर मेरे स्वर्ग में. तेरे लिए तो मैंने बनाया, सजाया है इस स्वर्ग को. यही तुझे मेरे संग संग हमेशा हमेशा रहना है. इंसान के जीवन का आदर्श बन जाए तो फिर वो भला मानस बन के दुनिया में जीता है. आज इंसानों के पास एक गोल नहीं है. पैगंबर ने वो गोल दिया. गोल नहीं होने की वजह से बहुत कुछ दौलत है, लेकिन सुसाइड्स हैं. गरीब लोग नहीं, अमीर लोग भी सुसाइड करते हैं. तो खैर,
बातें लंबी हो रही है, आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना. I thank you for your patience, for your tolerance, for your magnanimity. Thank you so much. Thank you, Shahid Memon ji, for your beautiful and enlightening words on the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, concluding this evening, I would like to call Sister Nazrana to give vote of thanks. Assalamu alaikum. May Almighty's peace and blessings be upon all of you. ये बहुत बड़ा उपकार है अल्लाह ईश्वर गॉड का हम पर कि उसने हमको यहाँ आज जमा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी उनके पैगंबर है उनके बारे में जानने का हमें मौका दिया. इसी तरह हमें मिलने का, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद है, हम सबको एक साथ मिलने का, जुलने का, एक दूसरे को समझने का मौका दिया. और जो नफ़रत का माहौल आज दुनिया में पनप रहा है उसको दूर करके जो है हमको एक साथ आने का, अपने ताल्लुक़, अपने रिलेशन अच्छे बनाने का एक मौका दिया. बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ईश्वर गॉड का और मैं धन्यवाद करती हूँ अल्लाह ईश्वर गॉड को इसके लिए, क्योंकि अगर उसकी परमिशन नहीं होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता. फिर मैं अपने हमारे चीफ़ गेस्ट शाहिद मेमन साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत दूर से कर्नाटक से वो यहाँ पे आए इस प्रोग्राम के लिए और ऐसे शख्स के बारे में हमको परिचित कराया जिसके बारे में जानने की हमको बहुत उत्सुकता थी. थैंक यू शाहिद मेमन साहब. फिर आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया हमको और इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया और इससे हमें एक प्रोत्साहन भी मिला कि हम ऐसे प्रोग्राम जो है बार बार करें और आपस में भाईचारा और बढ़ाएं. मैं धन्यवाद करती हूँ जमाते इस्लामी हिंद के सर्व कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने बहुत ही लगन और मेहनत से जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इसके लिए अपना वक्त दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. हॉल के जो ओनर हैं मिस्टर झांटे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये हॉल हमारे लिए अवेलेबल कराया. इस हॉल जेड स्क्वायर के स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया इस प्रोग्राम के लिए. हमारी कैटरिंग कंपनी जो है ज़ाफ़रान, जिसके खाने के मज़े अभी हम लोग लेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच. Thank you once again all of you. अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, if you all have any questions, then definitely we'll take it during the interaction while having dinner. Thank you.